Hello everyone, I welcome you all in this video again. In this video, basically we are discussing about the previously asked gate problem on the metal cutting. And in the previous two videos, we have discussed seven problem. And in this video, we are going to discuss from the eighth problem onwards. So let's start with the eighth. Yeah. So in the problem is, yeah. In an orthogonal machining operation, the uncut chip thickness is 0.5 mm, means what is the value is given to you, that is T, okay, uncut chip thickness. The cutting speed is this, so V, that is 20 meter per minute, rake angle, that is alpha, width of cut, that is value of B, okay. Chip thickness, that is TC, is 0.70 mm, thrust force, that is FT, okay, and the cutting force, that is FC. So the value of FT is 200 Newton and FC is 1200 Newton. We have to assume the Merchant's theory. And first of all, what we have to find out, this is basically the common data problem in which three problems is associated with this problem. Okay, so first problem is we have to evaluate the shear angle and the shear strain. So first of all, for the shear angle, that is phi, and we have the formula, that is tan phi equals to r cos of alpha upon 1 minus r sin alpha. Okay, so r is basically the chip thickness ratio and alpha is the rake angle. So rake angle, that is 15 degrees given to you, and r is basically the T by TC, that is uncut chip thickness to the chip thickness. So uncut chip thickness is given to you, that is 0.50 mm, okay, and TC value is 0.70. So from here I can calculate the value of R, and alpha is given to you. So from this equation we will get the value of phi. Okay, so from this, what is the value of R? That what I'm getting is 0.7143. Okay, so this is the value of R. So just we have to put it in formula, that is tan phi equals to R, that is 0.7143 into cos of alpha, that is 15 degree, upon 1 minus 0.7143 into sine alpha, that is 15 degree. Okay, so when you will calculate this numerator portion, okay, so what I'm getting is 0.6899. Okay, so this is the value of in numerator, and when you will calculate this one, okay, in the denominator I am getting is 8151. Okay, तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 phi की value. So this 10 phi will be equals to 0.8464. तो यहाँ से क्या करना है आपको, 10 inverse करना है. So you will get the value of phi. So that will be 40.2446. Okay, so this is basically the value that I am getting in degree. So we have to check the answer, that what is available. That is 30.3 and 30.3, means in this is the shear angle, okay, and 40.2 and 40.2. So what we are getting is 40.222446. So this will be equals to 40.2, because when there is a common data problem or linked equation, you always means अगर कोई link equation है, तो आपको क्या करना है कि जो वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं, मीन्स जो न्यूमरेटर आंसर में अवेलेबल है, आपको उसी वैल्यू को कंसिडर करके आगे फॉरवर्ड करना है. क्या होता है अदरवाइज कि यहाँ पे अगर मैं वैल्यू ले लूंगा, अगर मान लो कि मुझे फाई और आगे की जरूरत है, ठीक है, अगर कुछ वैल्यूज जो फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट, अगर उसमें मुझे फाई की जरूरत है और अगर मैंने 40.2446 ले लिया, तो इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाएगा. थोड़ा बहुत वेरिएशन की वजह से क्या हो जाएगा कि आंसर पूरे चेंज हो जाएंगे. अगर कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यूज दी हैं तो वो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है कि 40.2 दिया है, देन यू हैव टू कंसिडर इट एज अ 40.2 ओनली. ओके, सो आंसर क्या हो सकता है, या तो सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है. ये किस पे डिपेंड करेगा कि शेयर स्ट्रेन पे, शेयर स्ट्रेन की वैल्यू क्या है. नाउ अब इसमें जो शेयर स्ट्रेन का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे मैं कंसेप्ट डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जो शेयर स्ट्रेन है वो लोग हम
रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से. ओके, सो दिस एप्सिलॉन विल बी इक्वल्स टू कोट फाई प्लस 10 फाई माइनस अल्फा. ओके, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? दिस इज देयर इज अ कंसेप्ट बिहाइंड दिस, सो दैट कंसेप्ट इज नॉट कंसिडरिंग आई एम ओवर हियर बिकॉज वी आर कंसिडरिंग वी आर फाइंडिंग आउट, वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ओके, तो आपको क्या करना है यहाँ पर फाई और अल्फा की वैल्यूज पुट करनी है. सो दिस एप्सिलॉन इक्वल्स टू कोट फाई. फाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 40.2 प्लस 10 फाई माइनस अल्फा, दैट इज 40.2 माइनस अल्फा, दैट इज 15 डिग्री. ठीक है, तो कोट फाई कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको कर दीजिए 1/10 फाई. ठीक है, तो 1/10 40.2, तो जब उसको कैलकुलेट करेंगे आप, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 1.1833 प्लस इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट इज 10 40.2 माइनस 15 डिग्री, सो यू विल गेट इट लाइक 0.4706. ओके, तो जब आपको क्या करना है कि समीशन कर देना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ shear strain. तो हाउ मच आई एम गेटिंग इज 1.6539. ओके, तो अप टू 2 डिजिट दिया है, so this will be 1.65. okay, this is shear strain, so option is D. Okay, so this is the first problem. Let's move to the second part of it. Second part, uh, in the second problem, the coefficient of friction at the tool chip interface means we have to find out the value of mu. So for the mu, हमारे पास दो possibilities हैं. ठीक है, so first possibilities is 10 beta and second possibilities क्या है कि that is f by n. Okay, तो चूंकि इसमें दोनों में ही आप को एज्यूम मर्चेंट्स थ्योरी. ठीक है, बिकॉज एफ और एन तो एनालिसिस पे ही डिपेंड करता है, मर्चेंट थ्योरी पे. नाउ बीटा वी आल्सो कैलकुलेटिंग फ्रॉम द मर्चेंट एनालिसिस ओनली. ओके, सो आइदर क्या करिए आप लोग, बीटा फाइंड आउट करना है. मींस बीटा फाइंड आउट करने के लिए 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री. या तो ये कर सकते हैं हम लोग, या फिर क्या कर सकते हैं, एफ और एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. एफ और एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? हमें यहाँ पे एफ टी दैट इज थ्रस्ट फोर्स एंड एफ सी दैट इज कटिंग फोर्स दिया हुआ है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एफ की वैल्यू को लिख देते हैं, दैट इज एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस ऑफ अल्फा. ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज एफ सी कॉस ऑफ अल्फा अपॉन सॉरी माइनस एफ टी साइन अल्फा. ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल में किया भी था एक बार. ठीक है, तो कैसे आया है आप उस वीडियो में देख भी सकते हैं. तो दोनों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से म्यू की वैल्यू मिल जाएगी. बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें फाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया ही है, अल्फा गिवन है, तो हम यहाँ से बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जब वैल्यूज पुट करेंगे दैट इज 40.2 प्लस बीटा माइनस अल्फा कितना है 15 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो बीटा जो मेरे आ रहा है दैट इज 24.6. व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट इज 24.6. ओके, तो आपको क्या करना है, म्यू इक्वल्स टू 10 बीटा 10 24.6. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दैट टाइम you will get the value that is 0.4578 or approximately in two digit it will be 46. ठीक है, so option will be B. Okay, it's an easy problem, but you have to check with this formula as well. Okay, that what value you are getting. What I'm getting is I'm getting the same, but please if you want to try something new, so better you should go for this formula. Okay, you try it and you can tell me the answer, what answer you are getting from that, whether it's same or different. So next, let's move to the next part of it. This is a very good formula. Sorry, this is very good numerical. Okay, so percentage of total energy dissipated due to friction at the tool tip interface. So first of all, the total energy,
I just want to tell you about the concept. What is concept there is. I am not telling how the formula came, but मैं आपको ये बता देता हूँ कि formulas क्या है एंड जो भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस तरह से करना है हमें, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल्स टू मेन जो कंपोनेंट है आपका ड्यूरिंग दिस कटिंग इज एफसी, दैट इज कटिंग फोर्स, ओके। और कटिंग फोर्स की अगर मैं ये सिंपल सा आपका फिगर कंसिडर करता हूँ जो टूल वर्कपीस ज्योमेट्री है, this is VC, okay. In this direction there is a uh, cutting force and the velocity, cutting speed in this direction, okay. This is chip velocity. So FC in this direction the velocity is V, okay. So this is basically the total energy. Now this total energy basically now because of this total energy, because whatever the cutting force that we are applying, because of that there will be a shearing action. Because of that only that chip come out. So this shear force will be in this direction. So shear force in here, from here the angle is phi, okay. So this is in Fs. Now when this chips, because of shearing action, the chip is coming out. Now chip is moving in this direction over the two, so the friction force will be in this direction, okay. This is F. So because of this Fc, there are two forces are induced. First is shear force, that is Fs, and second is uh, frictional force, okay. Now when this shearing force in which this shear takes place, this is a primary shear zone. So if you will consider, we can consider that Vs is the shearing velocity that is in this direction, okay, in the shear plane. This is the cutting velocity, sorry, this is the chip velocity, that is Vc. So the total energy is like Fc into V. So this, because of this Fc, there is a bifurcation of two forces. So this because of that, means the total energy will be divided into two parts. First is friction, in the friction part, second is in the shearing zone, shearing, okay. So because of shearing there will be loss of energy. So this is Fs into Vs, plus because of the friction as well, so this F into what velocity will be in that direction, that is chip velocity. So this is basically the total energy that is dissipated during the metal cutting, okay. Now what is the problem is asking, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि percentage of total energy dissipated due to the friction. So friction के लिए total energy कितना हो गया, friction के लिए ये वाला हो गया. Now we have to find out the percentage. So total energy कितना है, that is Fc into V. Friction में कितनी जा रही है, F into Vc. So the percentage of total energy dissipated due to the friction will be equals to F into Vc, that is cutting velocity, upon Fc into V. Okay. Now F is the frictional force, Vc is the chip velocity, Fc is the cutting force, and V is basically the cutting speed. Okay. Now cutting speed, that is 20 meter per minute is given to you. Okay, Fc, that is 1200 Newton is given to you, but we don't know the value of F and Vc. For F, we can use this formula, that is Fc sine alpha plus Ft cos of alpha. Okay, so alpha, Fc and Ft is given to you, so we can get the value of F from here. Okay, so that is equals to Fc, that is 1200 into sine alpha, how much, that is 15 degree, plus Ft, that is 200 into cos of alpha, that is 15 degree. Okay, so this will give you F. When you will calculate it, you will get the value. What I am getting is that is 503. Yeah, it's 503.768 Newton. Okay, so this is the value that I'm getting of frictional force. Now we have to find out the value of Vc. Okay, so how this Vc value and how this Vs value we can evaluate, we have the concept behind that. So just I want to brief you about that concept. So we have, please keep in mind the value of this Fc, what I'm getting is, that is, so value of F, that is equals to 503.768. Okay, that is Newton that we are getting, because we have to utilize that. Now when you will assume this geometry, ठीक है, तो ये आपका टूल हो गया, ये आपकी चिप हो गई.
ठीक है, ये आपका वर्क पीस हो गया. दिस इज वर्क, दिस इज टूल, दिस इज चिप. ओके, नाउ we see in this direction. Okay, vs is along the shear plane, so this is vs, and v is in this direction, that is cutting velocity. So ये जो point of contacts है, like at here this v is coming from here, this vs is going from here, this chip is moving. Okay, तो ये जो triangle यहाँ पे जो point बन रहा है, अब मैं क्या है कि velocity is a vector quantity. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक वेक्टर ट्राइंगल बना रहा हूँ. ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करना कि आपका जो v है, that is velocity, cutting velocity, that is in this direction. ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ से क्या है, फाई एंगल पे, ये आपका फाई एंगल है. ठीक है, फाई एंगल पे कितनी वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी है, that is vs. ओके, सो दिस इज vs, फाई एंगल, ये वाला एंगल फाई है. ठीक है, और इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है, दिस इज vc. सो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इस तरह से इसका ग्राफ बना सकते हैं. नाउ वर्टिकल से ये जो एंगल है, दैट इज अल्फा. तो ये वाला एंगल कितना हो जाए, ये जो एंगल है दैट इज अल्फा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा. ये जो एंगल है हमें पता नहीं, तो हम इसको x कंसिडर कर लेते हैं. नाउ टोटल सम कितना होता है, दैट इज 180. ट्राइंगल का टोटल सम कितना होता है अंदर का, 180. ठीक है, 180 डिग्री, तो दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 5. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 90 माइनस 5 प्लस अल्फा. मैं इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ कि दैट इज 90 माइनस 5 माइनस अल्फा. अब मुझे क्या करना है कि तीनों एंगल मुझे पता हो गए, दिस इज 5, दिस इज 90 माइनस अल्फा, दिस इज 90 माइनस 5 माइनस अल्फा. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन रूल लगा देता हूँ. हालांकि मुझे इस प्रॉब्लम में सिर्फ VC ही कैलकुलेट करना है, जहाँ की V मुझे दिया है. तो VS हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, बट हम लोग उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं. तो साइन रूल क्या होता है, दैट इज V अपॉन जो इसके सामने वाला एंगल है इन टर्म्स ऑफ साइन, सो दैट इज साइन एक्स. साइन एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, 90 माइनस 5 माइनस अल्फा. ठीक है, तो 90 माइनस, अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ, तो 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज कोस थीटा. तो दैट इज इक्वल्स टू v cos ऑफ 5 माइनस अल्फा. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, ये तो एक v वाली टर्म आ गई. नाउ दैट इज इक्वल्स टू vc. तो vc के नीचे दैट इज साइन दिस एंगल. ओके, सो दिस इज vc अपॉन साइन विच एंगल, 5, दैट इज इक्वल्स टू vs. vs के नीचे साइन के साथ ये वाला एंगल, सो दिस इज vs अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा. सो कैन आई राइट लाइक कोस अल्फा. ओके, तो ये आपके पास एक रिलेशनशिप आ गई इन द वेलोसिटी के लिए. ठीक है, तीनों वेलोसिटीज के लिए v, vc, vs. जब भी आपको कन्वर्जन करना हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं. नाउ बट इस प्रॉब्लम में मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए vc, और मुझे v की वैल्यू गिवन है, 5 और अल्फा भी गिवन है. तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को इक्वल कर देता हूँ. जब दोनों को इस फॉर्मूले से, साइन इधर आ जाएगा, तो v साइन 5 अपॉन कोस ऑफ 5 माइनस अल्फा. ठीक है, तो अगेन दैट इज वैल्यू ऑफ vc. vc इक्वल्स टू v साइन 5 अपॉन cos ऑफ 5 माइनस अल्फा. ठीक है, तो v की वैल्यू पता है, दैट इज 20 इंटू साइन 5. साइन कितना आया, 5 कितना आया था, 40.2 अपॉन cos 5, दैट इज 40.2 माइनस अल्फा. अल्फा कितना है आपका, 15 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ से vc की वैल्यू मिल जाएगी. व्हाट आई एम गेटिंग इज, मुझे मिल रहा है 14.267 मीटर पर मिनट. ठीक है, तो ये हो गई आपकी VC की वैल्यू, और F की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 503.768 न्यूटन. ओके, तो परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी डिसिपेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल्स टू F इंटू वी सी अपॉन FC इंटू V. तो वैल्यूज रख दीजिए. F इज 503.768 इंटू VC कितना आ रहा है आपका, 14.267 अपॉन FC, दैट इज 1200 न्यूटन इंटू वैल्यू ऑफ V, दैट इज 20. तो जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, सॉरी, अगर हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, सॉरी मैं भूल गया. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.2999. ओके, और 100 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगी दैट इज 29.99%. सो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 30%. ओके, तो इतना जो है वो आपका जा रहा है फ्रिक्शन में, बाकी 70% कहाँ जाएगा,
इन शेयरिंग जोन। ओके, सो जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज हमें दूसरा भी स्टेप देखना है, इफ यू वांट टू प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम, देन एफएस इनटू वीएस आपको इसको भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। और अगेन उसमें परसेंटेज चेक करना है कि वेदर इट इज पार्टिसिपेटिंग, दैट 70% इज पार्टिसिपेटिंग दैट एनर्जी डिसिपेटेड इन दिस शेयरिंग जोन और नॉट। ओके, तो आपको कैलकुलेट करना है, और जो भी आंसर आए, अगर आप लोग मुझे टेक्स्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, let's move to the next problem. So these are the three problems that is associated with this problem. Okay, okay, so the problem is, तो आपका okay, so in this problem, a low carbon steel bar of 147 mm dia uh, with a length of 630 mm is being turned, turning हो रही है, ठीक है। turning में क्या होता है, diameter reduce होता है, तो initially there is a 147 diameter, but we don't know how much there is a reduction, okay, till now. And the observed two lives are 24 minutes and 1 minutes for the cutting velocities, means cutting tool आपका एक ही है, ठीक है। ओके, कटिंग टूल आपका एक ही है, बट जब हम लोग 90 मीटर पर मिनट जब वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, दैट टाइम द टूल लाइफ विल बी लाइक फॉर 24 मिनट्स। एंड जब आपका T2, दैट इज सॉरी V2, जो मतलब आप हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, दैट इज V1 जब आपका है, दैट इज 90 मीटर पर मिनट जब वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं, तो आपकी जो टूल लाइफ मिल रही है, दैट इज 24 मिनट। ओके, एंड जब आप वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, दैट इज 120 मीटर पर मिनट, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज की है, तो आपने टूल लाइफ कम होगी ही, सो दैट इज 12 मिनट। ओके, सो next is the feed and depth of cuts are like 0.20 mm per revolution and 2 mm respectively. Use the unmachined diameter to calculate the cutting velocity. Now अगर in case आपको cutting velocity use करना, calculate करना है, then you have to use the diameter, okay, unmachined diameter, so that is 147 we have to consider। okay, अगर जरूरत होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट क्या करना है, व्हेन द टूल लाइफ इज 20 मिनट्स, द कटिंग वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट। तो आपको दो कंडीशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अगर हम टूल लाइफ इक्वेशन लगाएं तो दैट इज VT रेज टू n इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे, दोनों इक्वेशंस कंडीशंस दी हुई है, दैट इज V1 T1 रेज टू n इक्वल्स टू V2 T2 रेज टू n। ओके, तो आपको क्या करना है, V1 T1 की वैल्यू गिवन है, V2 T2 की वैल्यू गिवन है, आपको यहाँ से n मिल जाएगा, तो कैलकुलेट करिए। फर्स्ट दैट इज V1 दैट इज 90 इंटू 24 रेज टू n इक्वल्स टू 120 इंटू हाउ मच, 12 रेज टू n। सो जब आप इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, सो दिस इज 24/12 रेज टू n। तो मैं इसको ओके, ठीक है, हम एक स्टेप और पढ़ा लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज 2 रेज टू n इक्वल्स टू 4/3। ओके, तो यहाँ से क्या करिए, लोग ले लीजिए, तो n जब लेंगे तो ln 4/3 अपॉन ln 2। ओके, तो यहाँ से n की वैल्यू जो आपको मिलेगी, दैट इज या व्हाट आई एम गेटिंग इज 0.4150। ओके, तो ये मुझे मिल रही है n की वैल्यू, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है, कैलकुलेट करना है, दैट इज जब टू लाइफ होगी 20 मिनट, ठीक है, तो आपकी कटिंग वेलोसिटी क्या होगी, तो मींस देयर इज अ थर्ड कंडीशन इज देयर। ओके, तो थर्ड कंडीशन जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम इसको इक्वल कर देते हैं, दैट इज V3 T3 रेज टू n। ठीक है, तो हमें क्या है, T3 की वैल्यू गिवन है, हमें V3 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट के इक्वल कर देता हूँ, दैट इज T1 B1 रेज टू n इक्वल्स टू V3 T3 रेज टू n। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, 90 into 24 raised to 0.4150 equals to V3 हमें कैलकुलेट करना है, T3 की वैल्यू है दैट इज 20 raised to 0.4150। ओके,
तो यहाँ से क्या करेंगे, V3 की वैल्यू मिलेगी आपको, दैट इज जो मुझे मिल रही है दैट इज 97.07 मीटर पर मिनट। ओके, सो अगर हम अप्रोक्सीमेटली इसको 97 भी कंसिडर कर सकते हैं, सो दिस आंसर विल बी बी। ओके, बहुत आसान प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट मूव टू दी नेक्स्ट प्रॉब्लम। Okay. So again, the same problem. That is what we have to find out is neglect over travel or approach. Over travel means आपका जब भी ये मशीनिंग होता है, मान लीजिए कि हम एक ये आपका सिलेंड्रिकल बार है और यहाँ पे हमने टूल किया हुआ है, ठीक है। तो ये टूल की लेंथ है L, ठीक है, दिस इज L। तो अप्रोच अप्रोच का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं यहाँ से अगर टूल को स्टार्ट करता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज वी कॉल इट एज अप्रोच। मतलब इनलेट पे जब हम कुछ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डिस्टेंस लेते हैं जहाँ से टूल हमारा स्टार्ट होगा, बिकॉज इट विल गिव अ गुड मशीनिंग, तो अप्रोच वो होता है। और ओवर ट्रेवल मीन्स यहाँ तक लेंथ है इनिश यहाँ से लेके यहाँ तक, बट स्टिल वी आर ट्रेवलिंग सम मोर बिकॉज इट विल कवर होल अमाउंट, सो दिस इज ओवर ट्रेवल। ओके, सो नेग्लेक्ट दी ओवर ट्रेवल एंड अप्रोच मतलब कुछ नहीं कंसिडर करना है आपको, बेसिकली इसमें मशीनिंग यहीं से स्टार्ट करनी है और यहीं तक ही रहेगी और उसके बाद हम टूल को बैकवर्ड ले लेंगे, ठीक है। When the tool life is 20 मीटर पर 20 मिनट्स, तो आपका टूल लाइफ है 20 मिनट्स मींस थर्ड कंडीशन की बात हो रही है। तो 20 मिनट उस टाइम पर आपका वेलोसिटी कितना आया था, 97 हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा आपको बोला है कि जब भी आपको कॉमन डेटा या फिर लिंक्ड डेटा क्वेश्चन है तो आपको जो वैल्यूज पहले आ चुकी हैं आपको उसी को कंसिडर करना है, मींस जो आंसर आपको दिया हुआ है आंसर में जो वैल्यूज हैं उसी को आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 97। द मशीनिंग टाइम इन मिनट फॉर अ सिंगल पास, तो यहाँ से लेके जब यहाँ तक पहुंचेगा तो इसमें टोटल टाइम क्या होगा। नाउ टोटल टाइम जो है मैं उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो जो ट्रेवलिंग टाइम होता है दैट इज L, दैट इज टोटल लेंथ अपॉन F बाई F इंटू एन, ठीक है। तो ये जो L है यहाँ पर हालांकि अप्रोच और ओवर ट्रेवल जीरो है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं A प्लस O को भी, ठीक है, अगर दिया होता तो, बट इसमें क्वेश्चन में बोला है कि दैट इज वी हैव टू नेग्लेक्ट इट, सो दस A प्लस O इज जीरो एंड दैट इज टोटल लेंथ इक्वल्स टू L। F इज द फीड, N इज द RPM। ओके, सो टोटल टाइमिंग कितना हो जाएगा आपका, दैट इज L अपॉन F into N। नाउ N इज इक्वल्स टू N जो है दैट इज रोटेशनल स्पीड। ओके, बट रोटेशनल स्पीड आपको दिया नहीं है, बट इसमें शुरू में बोला गया है कि दैट यूज द अनमशीन डायमीटर टू कैलकुलेट द कटिंग वेलोसिटी। तो कटिंग वेलोसिटी क्या है आपका v, बट किस कंडीशन की बात हो रही है, बात हो रही है जब टूल लाइफ कंसिडर कर रहे हैं हम लोग 20 मिनट, तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है 97, तो दिस इज v3 मींस n3 की बात हो रही है। तो n3 इक्वल्स टू v3 अपॉन पाई इंटू डी, ठीक है। तो स्मॉल t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज L, दैट इज चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, दैट इज F इंटू दैट इज V3 इन ऊपर चला जाएगा पाई इंटू डी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो L कितना है आपका, लेंथ आपको दिया था 630 mm। या तो एक काम करिए सबको मीटर में ले लीजिए या फिर mm में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने जो किया है दैट इज इन मीटर, तो मैं इसको 0.630 मीटर हो जाएगा इंटू पाई इंटू डायमीटर। अब डायमीटर इसने बोला है कि वी हैव टू यूज द अनमशीन डायमीटर टू कैलकुलेट द कटिंग वेलोसिटी। तो इसके लिए कटिंग वेलोसिटी अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते तो हम लोग डायमीटर अनमशीन डायमीटर यूज करते हैं। अनमशीन डायमीटर कितना है 147 mm, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.147 अपॉन एफ। फीड कितना है आपका, फीड है आपका 0.2 mm। अब mm में है तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ इंटू V3 की वैल्यू कितनी है आपने यहाँ से मिली थी, दैट इज 97, ऑलरेडी वो मीटर में है तो इसको एज इट इज रख दीजिए, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो तो मशीनिंग टाइमिंग आ रहा है while using 20 minute tool life, what I'm getting is that is 14.99 minutes, so approximately it will be
15 minutes. So the option will be C. Okay. Let's move to the next problem. Okay. So in this problem, in an orthogonal turning of medium carbon steel, the specific energy is given to you. So specific energy we are representing with the small e. So that is 2.0 joule per mm cube. Okay. And for that, the velocity, cutting velocity is given to you, that is 120 meter per minute. Feed, that is value of f, that is 0.20 mm. This is v. And depth of cut is given to you. So this is small d, that is 2 mm. Okay, respectively. The main cutting force in Newton means f, value of fc we have to find out. So for this, the specific energy is equals to work done per unit volume. Okay, so this will be equals to work done, that is fc into how much length we have to travel. Okay, turning ho rahi, so how much length we have to turn, and volume, that is this volume basically is the lost, मतलब कितना आपका मटेरियल जो है वो रिमूव हो चुका है. ठीक है, तो हम इसमें वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं. टर्निंग का केस है तो हम लोगों को फीड और डेप्थ ऑफ कट दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा. So that is f into d into L. Okay, so this is the total amount of the volume uh, that is removed from in a single pass. Okay, in a single pass. So L cancel out. This will be equals to fc upon f into d. So this complete value is equals to what? E, specific energy, 2. So this is f from here. fc will be equals to E into f into d. So this will be 2, okay, into f, that is 0.20 into d, that is 2 mm. Okay, so this will give you again we have to calculate in, we have to calculate, that is like if you will see the units, this is joule per mm cube. Okay, this is uh, mm per revolution, and this is mm. So this will be cancel out. Okay, and mm will be there. So joule, this joule is in Newton into meter. So what you have to do is you have to convert this meter into mm. So multiply with the 10 raised to power 3. So this will be like 10 raised to power 3. Okay, so when you will calculate, you will get like fc, value of fc, what I'm getting is that is 800 Newton. Okay, so this answer will be D. So अगर आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला पता नहीं है, बेसिकली जब मैंने इस फॉर्मूले को फर्स्ट टाइम किया, व्हेन आई अटेम्प्टेड इन मींस जब मैंने इस क्वेश्चन को पहले फर्स्ट टाइम किया, तो मुझे भी ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि समझ में नहीं आया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये क्वेश्चन गिवन ही नहीं है, मतलब इस तरह का कुछ कंसेप्ट गिवन नहीं है. कुछ प्रॉब्लम कुछ बुक्स में गिवन है. तो उस टाइम पे क्या किया जा सकता है कि मैंने क्या किया कि जब इस प्रॉब्लम को देखा तो मैंने ये जो फॉर्मूला बनाया है, दैट इज वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ये कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है. ठीक है, ये जो सिर्फ मैंने कंसेप्ट बनाया है, जो इसकी यूनिट आपको गिवन है, दैट इज जूल पर mm क्यूब. ठीक है, हालांकि जो बुक्स जब आप देखेंगे तो उसमें एक चीज गिवन है, दैट इज हीट और एनर्जी दैट इज डिसिपेटेड पर यूनिट MRR. ओके, या तो इस फॉर्मूले से आप कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं, या फिर इससे कर सकते हैं. बट एनर्जी क्या होती है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं वाट में. तो MRR भी किस में कैलकुलेट करते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड या फिर मीटर क्यूब मिनट में. सो दिस इज जूल पर सेकंड, सो दिस में ऑटोमेटिकली दिस विल बी कैंसल आउट. तो जूल पर mm क्यूब यहाँ से आ जाएगा. तो उससे मैंने इस फॉर्मूले को यूटिलाइज किया, मतलब डिराइव किया है. ठीक है, बाकी ऐसा कोई कंसेप्ट दिया हुआ नहीं है स्पेसिफिकली. तो जब भी आप गेट की प्रॉब्लम्स को करें, तो अगर फॉर्मूलाज गिवन नहीं है, देन यू हैव टू फॉलो द यूनिट्स. ओके, अगर कुछ नया आता है देन आप पहले सबसे पहले चेक करिए कि यूनिट्स क्या है, अगर नहीं गिवन है. तो इन दिस वीडियो वी आर स्टॉपिंग अप टू हियर. नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट फ्रॉम द problem number 11 onwards. So thank you so much guys.